वालिदा का कहना है कि बच्ची जब 4 से 5 घंटे घर से बाहर रही तो घर में वापस लौटने के दौरान रात को बच्ची की जो कि शलवार के साथ ब्लीडिंग या इस तरह खून था। ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾ ਕੇ ਪੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਬੱਚੀ ਸੁੱਤੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਬਲੱਡ ਸੀ ਅੱਧੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਐਸਾ ਜਿਤਾਨ ਤੋਂ पहले ਤੁਸੀਂ सारा काम लपेटो। हमारे सारे प्रूफ उन्होंने ख़त्म कर दिए सर। मुझ पर बहुत ज्यादती हुई और बहुत जुल्म हुआ सर। मैं गैरतमंद बाप हूँ सर और मैंने इससे भी कहा है कि अगर बात ये गलत हुई मैं तुझे काट दूंगा। बड़ों के जख्म 2 दिन लगते हैं लेकिन बच्चों के जख्म मिलने में देर नहीं लगती सर। अब उसका जख्म घूल के अब हम क्या करें सर, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम अपनी ज़िंदगी अब किस उम्मीद पे गुजारे। हमारी बच्ची तो देखे हर जगह पर पहुँच गई है सर। मैं लानत भेजता हूँ पैसों पर, पैसे कंजरों के पास भी बहुत है सर, लेकिन मुझे सबूत दें कि उनके पास इज्जत है कि नहीं। अस्सलामुअलैकुम, तत्वीर मीडिया के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, अभी मैं एक ऐसे वालिदैन के साथ मौजूद हूँ जिनका कहना है कि मुबैना तौर पर इनकी 4 साला बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई है, जबकि वालिदा का कहना है कि बच्ची जब 4 से 5 घंटे घर से बाहर रही तो घर में वापस लौटने के दौरान वो जो 4 घंटे थे वो इसने किसी के घर में गुजारे और जब घर वापस लौटी तो उसके बाद रात को बच्ची की जो कि शलवार के साथ ब्लीडिंग या इस तरह खून था। तो आइए वालिदैन से जानने की कोशिश करते हैं कि इस मामले में कितनी सदाकत है और पंचायत जो हुई है गांव में उसमें क्या फ़ैसला आया है, वो ये इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी की होया बच्ची कितने बजे निकली? भाई बच्ची दोपहर से गायब हुई 11 ਵਜੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ? ਚਾਚਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਤਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਬੱਚੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਗਈ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? ਬੱਚੀ ਦੁਪਹਿਰ ਕੋ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਵੇਰ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੇ ਨਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾ ਕੇ ਪੂਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਸੁੱਤੀ ਆ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਬਲੱਡ ਸੀ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇਗੀ ਮੰਮਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲੇਡ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਦਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਵਾਂਢਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਏ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਈ। ਮੌਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਲੱਗ ਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜੋ ਮਸਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਲਟਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸੁਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਨਪਾੜ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਵਾ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਸਾਈ ਫਿਰਿਆ ਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। SHO ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸਾ ਜਿਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਲਪੇਟੋ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਰਲੇ ਹੋ ਸਨ ਮਾਲਕ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ये बताएं कि आपने अपनी बच्ची को कितनी बार इसका खून आते हुए देखा है? भाई 2-3 बार खून आया। पास कोई सबूत, कोई कपड़े वगैरह पड़े? कपड़े इन्होंने उधरों नवा के कड्ढी है कपड़े, तो उस तो बाद रात को तो सुती है, सुबह थोड़ा बहुत खून लग गया।
कपड़े ਕੋਟੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ ਖੂਨ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा नाज़रीन, जब हम पंचायत में बैठे तो वहाँ पर भी ये जो कि बात हो रही थी कि इन्होंने वहाँ पर अपना ये सबूत देने चाहे हैं, लेकिन उन्होंने ये इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझा कि हम बच्ची के ये चीज़ें देखने को, या जो इनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि ब्लीडिंग जैसे। वालिद मौजूद है, पूछते हैं कि अब तक जो केस है कहाँ तक पहुँच चुका है, पुलिस का कितना ताउन है और मुखालिफ पार्टी क्या कहती। भाई ये बताएं कि आपकी अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज हो सकी, और मुखालिफ पार्टी की जानिब से क्या कोई धमकियाँ दी जा रही हैं, क्या कह रही हैं? वो ये धमकियाँ दे रहे हैं जी, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते, ये जो मर्ज़ी कर लें, हमने उधर से काम पक्का किया हुआ है, हमने चालाकी खेली हुई है, तो ये हमारा कुछ नहीं कर सकता। इसके पास हमने सारे प्रूफ इसके ख़त्म कर दिए हैं, ना तो इसका मेडिकल होने दिया है, ना इसका पर्चा होने दिया है। वो जो मामू है उसने कहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं थाने में काम पक्के कर आया हूँ, अब आप लोग आराम से घर बैठ जाएँ। ये दुनिया में किस नुक्कड़ पे मर्जी भाग जाएँ, इनकी कोई ना सुनेगा ना मानेगा, क्योंकि इनके पास प्रूफ नहीं है। हमारे सारे प्रूफ उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं सर। मुझ पर बहुत ज़्यादती हुई और बहुत जुल्म हुआ सर। मैं गैरतमंद बाप हूँ सर। ये मेरी औरत से पूछ लें कि किसी के घर में भी जाए तो मैं इससे कितनी लड़ाई करता हूँ सर। मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और ये मेरी बेगम ने जब मुझे बताया सर ये कि हमारे घर में ये वकूआ हुआ है, तो मैंने इससे भी पूछा है कि बात सोच समझ के करो, मेरी धी का फैसला। और मैंने इससे भी कहा है कि अगर बात ये गलत हुई मैं तुझे काट दूंगा। मैंने इसे कहा कि ये बात गलत हुई मैं तुझे काट दूंगा, लेकिन इसने कहा कि मुझे अल्लाह भी से उठा ले कि ये बात गलत हो। हाँ जी, क्योंकि जब बच्ची को उधर खून आ रहा था, अगर हम मेडिकल भी कराते तो होता था, सारा काम होता था। ये बच्ची है सर, बड़ों के जख्म 2 दिन लगते हैं, लेकिन बच्चों के जख्म मिलने में देर नहीं लगती सर। अब उसका जख्म घूल गया, अब हम क्या करें सर, हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। हम अपनी जिंदगी अब किस उम्मीद पे गुजारे। हमारी बच्ची तो देखे हर जगह पर पहुंच गई है। मेरी भी कुछ इज्जत है, गरीब की भी कुछ इज्जत है, कुछ अहमियत होती है सर। पैसे इन्होंने देने चाहें, कोई आपको चुप करवाने की कोशिश? सर इन्होंने लोगों से कहा है कि हमने उसको 50,000 दिया, यूं किया। सर मैं लानत भेजता हूँ पैसों पर। पैसे कंजरों के पास भी बहुत है सर, लेकिन मुझे सबूत दें कि उनके पास इज्जत है कि नहीं। मैंने जो जद्दोजहद की है अपनी इज्जत की खातिर की है, और मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, और ज़रूर मिलना चाहिए। ये एक गरीब की अपील है सर। नाज़रीन, ये थे वो माँ बाप जिनका कहना है कि मुबैना तौर पर इनकी बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम किस मुआशरे में रह रहे हैं। अगर ये मामला सच है तो वालिदैन के आंसुओं से तो यही लग रहा है कि उनसे बाकायदा तौर पर मैंने पहले हल्फन बयान लिया, फिर उनकी एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड की, फिर पंचायत में घंटा बैठ के बातें सुनी। तो नाज़रीन, बात यह है कि ऐसे मामलात को हम हाईलाइट कर भी नहीं सकते, लेकिन जब इन जैसे गरीब लोगों की, गरीब माँ बाप का देखे कि जो रो रो कर हमें मिन्नत समाजत कर रहे थे कि खुदारा आप लोगों की तो आवाज़ बनते हैं, हमारी भी आवाज़ बने, तो फिर जब इनकी बार बार कॉल आने के बावजूद इनको हमने पहले तो यही टाल मटोल करते रहे कि ये मामला बड़ा ही क्रिटिकल है, लेकिन जब इस बाप ने रो कर हमसे यही फरियाद की कि खुदारा हमारी आवाज़ तो सुनी जाए, हम तक एक बार आप पहुँचे तो सही, हमारी आवाज़ तो सुने कि हम में कितनी हक़ाइक़ हमारे पास हैं, सच है या नहीं। नाज़रीन, बात ये है कि हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं कि बिल्कुल हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो बिगड़ती जा रही हैं। तो इस मुआशरे को ठीक करने के लिए हमें अभी बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर इस मामले में कुछ सदाकत है, मुबैना तौर पर इनका कहना है कि बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है, अगर इस मामले में कुछ सदाकत है तो मेरी जो कि कानून नाफिज करने वाले अदारों से यही अपील है कि खुदारा इस गरीब वालिदैन को इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें तत्वीर मीडिया।